morning, my little ones. I hope you all are fine and absolutely enjoyed a lot in these holidays. So, yes, here we are back in our EVS class, and now we will be starting with the studies again. And yes, our PT3 exams done, result done, and before PT exam, we had done one chapter that we will be doing in the finals also, that was locating places. Recently we had completed that chapter, right? Locating places we had completed, and then today we will be starting with a new chapter, and I hope that India political map is clear to all of you. If you are having any confusion, you can call me and ask me anything. And yes, celebrating festivals chapter also will be included. Yeah, that I will be telling you what will be included or what will not. It is not sure that this chapter will be included or not. So yes, 18 chapter that was we had done before the PT exams. Locating places, in that chapter we had done a political map also. We learned about 20 states and their capitals. And now today what we are going to do, today we are going to start with a new chapter, and the chapter number is 19. Open your book everyone, and we will be reading this chapter along, and we'll be understanding the methods and what is the name of the chapter. Before telling you the name of the chapter, I want to ask one thing. Tell me, if you are hungry, if you are very hungry and you want food, how will you express, how will you tell this thing to your mother, right? So we will tell this thing to mother like we are very hungry, we need food. If we will not tell, she will not say कि तुम्हें भूख लगी है नहीं, but अगर हम उन्हें बताएंगे तो हमें खाना मिलेगा, right? Right? So this is the thing, like we are expressing our feeling, we are expressing our something. If we want to talk with someone, this is known as communication. And why I am telling you the meaning of communication? Because chapter we are starting today, that is the 19th chapter, its name is means of communication. Its name is means of communication. So we are starting this chapter today, and our total 4 or 5 chapters are left to do. Let me tell you, this after this chapter, like after 19 chapter, we are having 1, 2 and 3 chapters more. So total we are having 4 chapters to complete, right? So total we are having 4 chapters to complete before the final exams. And yes, today we are starting with the first chapter, जो हमारा फाइनल में आना है, जो अभी हम कर रहे हैं PT3 के बाद. PT3 से पहले हमने 18 चैप्टर किया है, that will also come. And yes, its name is means of communication. Now what is the meaning of communication? See, communication is the process of expressing our ideas, our emotions and our feelings. If we want to express anything with anyone, this means communication. इसका मतलब क्या होता है communication? If we are communicating with anyone, if we want to give information like tomorrow is the holy day, if I want to give अगर मुझे आपको information देनी है, how I will give you? I will tell you ना. अब मैं आपको बताऊंगी तभी वो information पहुंचेगी ना आपके पास, right? So अगर हम जिस भी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, that is known as communication. That is known as communication. Now next thing is means of communication. Now what is the meaning of means of communication? अब यहाँ पर means का मतलब क्या है? Now the means means the means we use to communicate with anyone, with like others. जो भी हम means में जो साधन use कर रहे हैं, जो तरीके use कर रहे हैं, जो ways use कर रहे हैं to express our feelings, to communicate with anyone, with others. So this thing is known as means of communication.
राइट जो साधन हम यूज कर रहे हैं, जो वेज हम जिन तरीकों से हम बात करना चाह रहे हैं, समवेयर वी आर यूजिंग आवर टेलीफोन, समवेयर वी आर यूजिंग आवर मोबाइल फोन्स, we are using some postal card system, like we post letters, and in the earlier time it was used as like postcards, and pigeon were used to send the letters, and nowadays we are talking on WhatsApp, right? WhatsApp, Instagram, there are lots of social media sites are there. We can connect with anyone and we can communicate. Technology increases, and we are having so many ways to communicate with anyone, right? So before हम पहले की बात करें तो पहले की बात, if I am telling you, there was a system known as telegram. It was a letter. टेलीग्राम भी एक लेटर होता था, एंड इसको हम वायर बोलते थे. तो एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती थी टेलीग्राम की. उसमें क्या होता था, वायर से कनेक्ट होती थी, उनके थ्रू मैसेजेस जाते थे, एंड ऑल्सो हम उनसे लेटर लिखकर पोस्ट भी करते थे. तो टेलीग्राम एक इस तरह की मशीन थी. यू कैन सी द ऑन द स्क्रीन, दिस इज द टेलीग्राम मशीन, एंड जो बहुत टाइम पहले यूज होती थी, राइट? So nowadays there are lots of technologies are there. We can use any mode to communicate with anyone. So today I will be telling you about one thing only, that is the postal system. Today I will telling you about postal system, and I hope the meaning of communication and means of communication is clear to all of you. If still you are having any doubt, you can ask, and you can call me and ask anything about this chapter, right? So telegram was an electric machine that I show you, and now the topic we choose to talk is postal system. इस topic के ऊपर हम बात करेंगे, that is the postal system. Now what is the postal system? It is the cheapest means of communication. Cheapest means सबसे सस्ता साधन है communication का. बहुत ज्यादा यूज होता है पोस्टल कम्युनिकेशन. वी कैन राइट मैसेजेस ऑन पोस्ट कार्ड्स. हम पोस्ट कार्ड्स पर अपने मैसेजेस लिख सकते हैं, राइट? वी कैन यूज पोस्ट कार्ड्स. वी कैन सेंड इनलैंड लेटर्स. इनलैंड लेटर्स क्या होते हैं? इनलैंड लेटर्स आर दोज लेटर्स विच mostly send across in our country only. We cannot send these letters to abroad. Like out of our country we cannot send these letters. These letters are known as inland letters. And then stamped envelopes. Envelope पे stamps होती हैं. I will show you that also. Stamped envelopes. We can write our messages on this also. And also aerograms. Aerogram also is a type of a letter, that is airmail, and it is a type of a mail. It is only having a single page, and it is just folded and created and sealed it in the form of a envelope. तो वो होता है aerogram. So इस तरह से इन चीज़ों से हम postal system क्या होता है. पोस्टल सिस्टम इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी कैन राइट मैसेजेस ऑन पोस्ट कार्ड्स. हम पोस्ट कार्ड पर मैसेज राइट कर सकते हैं, लेटर्स, स्टैम्प्ड एनवलप्स एंड एरोग्राम्स, एंड वी बाय देम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. तो हम इन सबको कहाँ से परचेज कर सकते हैं? वी कैन बाय देम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. हम इन्हें पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं, राइट? एंड लेट्स सी how a letter reaches its destination. अब वो अपने destination पे कैसे जाएगा, that I will be telling you. See, now how letter will reach at its destination. Firstly, we write a letter. हमने एक letter लिखा. We write a letter and we drop it into a. First step will be we drop it into a letter box. So हमने क्या किया, लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. एंड बिकॉज एवरी लोकेलिटी हैज अ लेटर बॉक्स, हर एक जगह पर लेटर बॉक्स है. वी जस्ट राइट द लेटर एंड वी ड्रॉप इट इनटू अ लेटर बॉक्स. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस स्टेप? पोस्टमैन विल कलेक्ट दिस
नाउ पोस्टमैन कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे. उसका एक फिक्स टाइम होता है पोस्टमैन का कि इफ मॉर्निंग में सपोज पोस्टमैन इज कमिंग नियर टू द लेटर बॉक्स अबाउट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. 10 o'clock पे आ रहा है मॉर्निंग में, डेली उसी टाइम पर आ रहा है. What he will do, he will collect all the letters from the letter box as a fixed time and takes them to the head post office. अब जो postman है वो collect करके कहाँ लेके जाएगा? To the head office. जो head office होगा हमारा post office होगा, main post office, वहाँ पर ये सारे letters पहुँच जाएंगे. And now at the post office, head post office. Right now at the post office these letters are stamped by another postman. अब जो एक postman तो क्या था, लेकर आया था letters को लेटर बॉक्स से. अब वो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में लेकर गया सारे लेटर्स को. वहां पर एक और पोस्टमैन, फर्स्ट पोस्टमैन, यहाँ पर अनदर पोस्टमैन, वो क्या करेगा? अनदर पोस्टमैन, सेकंड पोस्टमैन का वर्क क्या होगा? यहाँ पर सारे उनको स्टैम्प किया जाएगा, सारे लेटर्स को स्टैम्प किया जाएगा. कोई और पोस्टमैन करेगा, सेम पोस्टमैन ये काम नहीं करेगा. नाउ स्टैम्प लेटर्स आर अरेंज्ड इन स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द प्लेसेस दे शुड रीच. अब उनको स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है, स्लॉट्स में डिवाइड किया उन्हें कि कौन सी प्लेस पर कितने लेटर्स जाने हैं. दिस यहाँ पर इस तरह के लेटर्स रख दिए जो सिरसा जाने हैं, इस तरह के हिसार, इस तरह के फतेहाबाद. तो इस तरह से एक स्लॉट्स बना लेते हैं, अलग अलग रख लेते हैं उन लेटर्स को कि कौन सा सिटी में कौन से लेटर्स जाने हैं, सो दैट उनको कंफ्यूजन ना हो. एंड दे आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशन इन बिग बैग्स. अब क्या होता है, उनको बिग बैग्स में पैक करके उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाता है. ट्रेन्स के द्वारा बिग बैग्स में डाल दिए जाते हैं. अगर लोकल है तो इन बिग बैग्स जा रहा है, बाय बसेस के थ्रू जा रहा है, और ट्रेन्स के थ्रू जा रहा है, और एरोप्लेन्स के थ्रू भी जाता है. सो इस तरह से क्या होता है, जो हमारे लेटर्स हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं. Then the next step is when they reach their destination. अब जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, suppose it reached my letter reaches to the Delhi. मैंने दिल्ली एक लेटर भेजा और वो लेटर दिल्ली के डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, तो वहां पर क्या होगी, पोस्टल वैन आएगी और उसको एक मेन पोस्ट ऑफिस में ले जाएगी. अब फिर से वहां के दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाकर उसका मेन पोस्ट ऑफिस में जाएगा थ्रू द पोस्टल वैन. मेन पोस्ट ऑफिस में जाएगा अगेन, बट कहाँ, जहां पर डेस्टिनेशन थी उसकी वहां पर. एंड इट्स टेक टू द मेन पोस्ट ऑफिस देयर. नाउ व्हाट विल हैपन एट द मेन पोस्ट ऑफिस? वहां पर जाकर क्या होगा, द लेटर्स आर सॉर्टेड अगेन अकॉर्डिंग टू एरिया. वहां पर फिर से एरिया के अकॉर्डिंग होंगे. पहले क्या हुआ था, यहाँ पर सॉर्ट हुए थे सिटी के अकॉर्डिंग, राइट, और यहाँ पर आके एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल टोटली उनको अरेंज कर दिया जाएगा कि कौन से एरिया में जाएंगे, बिकॉज दिल्ली इज वेरी बिग सिटी, राइट, और वहां पर कहाँ कहाँ जाना है, बहुत सारे लेटर्स होंगे, कहीं पे भी जाने हो सकते हैं. सो फाइनली द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर टू द करेक्ट एड्रेस एंड पर्सन. उसके बाद जो मेन प्रोसेस होता है तो वो उसके डेस्टिनेशन, उसके घर पर होता है, उस पर्सन के पास होता है जिसे हमें लेटर देना होता है. So this was a very small journey of the letter कि किस तरह से हमारे letters अपने destination पे पहुंचते हैं, right? You know, in the previous time, long time ago, बहुत टाइम पहले की बात है, जब इस तरह के systems नहीं होते थे, तब क्या होता था, then peasants were used to carry letters from one place to another. जो peasants होते हैं ना, कबूतर, उनकी हेल्प ली जाती थी. बहुत लॉयल होते थे, उनको सब पता होता था कि किसको देख के आना है, राइट. तो वो क्या करते थे, एक लेटर को उठाकर दूसरे पर्सन के पास देकर आते थे. एंड वन प्लेस टू अनदर. मैन वर ऑल्सो सेंट ऑन फुट और ऑन हॉर्सेस टू डिलीवर लेटर्स. कई बार क्या होता था, किसी आदमी को भी भेजा जाता था, किसी पर्सन को भी भेजा जाता था, वो कभी फुट पर चल के जाता था अलॉन्ग द, ओके, एंड समटाइम ऑन हॉर्सेस बहुत यूज होते थे उस टाइम पे. तो ये वाला जो टाइम था, तब क्या होता था, जब लेटर है उसको बहुत टाइम पहले उन्हें पोस्ट करना पड़ता था,
because it took a very long time to reach their destination, right? अब कोई पैर पर चल के जा रहा है तो of course time लगेगा. Like this, it create very mess, like बहुत time लग जाता था. Then this thing came, postal system. क्या होता है, लेटर लिखते हैं हम, लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं. तो फर्स्ट पोस्टमैन क्या करता है, पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लेटर बॉक्स से कलेक्ट करता है और हेड पोस्ट ऑफिस तक लेकर जाता है. और उस हेड पोस्ट ऑफिस में जो अनदर पोस्टमैन होता है वो उन सारे लेटर्स को स्टैम्प करता है. फिर उन लेटर्स को सिटी के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, स्लॉट्स बना दिए जाते हैं. फिर वो लेटर्स पैक होकर कहाँ जाते हैं, बाय थ्रू बसेस, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स वो डेस्टिनेशन पर जाते हैं. वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अगेन वो वहां पर जाकर मेन पोस्ट ऑफिस में जाएंगे. एंड देन फ्रॉम मेन पोस्ट ऑफिस इट विल अगेन अरेंज अकॉर्डिंग टू द एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए सारे लेटर्स. एंड देन द मेन डेस्टिनेशन पर वो सारे लेटर्स पहुंच जाएंगे. सो यस, दिस वॉज द शॉर्ट जर्नी. या इट इज शॉर्ट जर्नी. पहले के टाइम में बहुत लॉन्ग जर्नी होती थी कि लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता था, समटाइम ऑन हॉर्सेस, तो इससे बहुत टाइम लग जाता था. दिस वॉज द जर्नी ऑफ द लेटर. या सो आई विल बी टेलिंग यू नाउ व्हेन व्हाट वी नीड टू सेंड द लेटर्स. हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है. सो वी आर लर्निंग दैट नाउ. आई होप द स्टेप्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यस, when you send a letter to someone, make sure that you have a fixed stamps of correct value on envelope. Stamps as you can see on the screen. आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्टैम्प्स होनी चाहिए जो आपकी एनवेलप्स पे लगी होंगी. उन स्टैम्प्स के बिना we cannot send these letters. Okay. Now उसके बाद क्या होना चाहिए, नेम रिटर्न होना चाहिए, नेम, एड्रेस, फोन नंबर. सो ये चीज़ें जो है वहाँ पर रिटर्न होनी चाहिए. एंड मेनली पिन कोड. पिन कोड भी होता है. पिन कोड हर एक सिटी का अलग अलग होता है. लाइक आर सिरसा's पिन कोड इज 125055. सो इस तरह से हर एक सिटी का डिफरेंट पिन कोड होता है, 6 डिजिट्स का होता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं दैट वी हैव टू राइट ऑन द letter before sending that. So pin code. Now what is the full form of pin code? What is the full form of this? PIN. PIN means postal index number. पोस्टल इंडेक्स नंबर जो जब हमें लेटर्स को सेंड करना है, इट इज़ वेरी कंपल्सरी. लाइक अभी देखो, हम कई बार ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हैं, किस चीज़ की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास जो कॉरियर्स आते हैं सबसे पहले वो हमारे से इंफॉर्मेशन मांगते हैं दैट वेयर विल इट, वेयर व्हाट इज द पिन कोड ऑफ दैट एरिया. तो हमें वो सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं, उसके बिना हमारे पास कॉरियर नहीं आ सकते. ओके, सो दिस इज द थिंग, पोस्टल इंडेक्स number, and our Sirsa postal index number is 125055. This is the pin code of our area. And yes, सभी एरिया में, सभी पोस्ट ऑफिस में, सभी की कंट्री में 6 डिजिट के पिन कोड होते हैं. हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट होती हैं हमारी कंट्री में. तो जब हम पिन कोड लिखते हैं तो वो आसान हो जाता है पोस्टमैन को सॉर्ट करना अकॉर्डिंग टू द देयर डेस्टिनेशन, अकॉर्डिंग टू द एरिया. वो पिन कोड को देख के पहचान जाते हैं कि हमें ये लेटर कौन सी साइड पर रखना है, कौन से बैग के अंदर एड ऑन करना है. सो इट मेक्स द वर्क easy for the postman. So yes, that is all for today. I hope it is clear to all of you what is the communication, what is the means of communication, what is postal system, how we can send the letters, what is the journey of the letter. So yes, we will continue this in the next week. Thank you so much for watching. Bye bye all and take care.